Who will explain question No, number 41? Question number 41 is which term of the arithmetic progression is 420? So nth term of arithmetic progression is Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Tn given है आपको 420, a यानी first term which is 21, and we have to find out and common difference is 21. ठीक है, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, like first term is 21, then 42, then 63, then 84. This is 21 into 1, this is 21 into 2, this is 21 into 3, and this is 21 into 4. So 1 2 3 4 210 आएगा, फिर 420 आएगा, तो क्लियरली ये है 20th टर्म. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 में डाउट है? Question number 42 डिस्कस करते हैं. The summation of first 20 terms of an arithmetic progression whose first term is 5 and common difference given है यहाँ पे कितना? 4. So Sn is equal to number of terms upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. Number of terms given है 20 upon 2 यानी 10. A यानी first term which is given as 5 into 2 10 plus n minus 1 यानी 19, and common difference is given as 4. So 19 into 4 is 76 plus 10 86 into 10. Any final answer option? D. Question number 43 डिस्कस करते हैं. Two arithmetic progressions having equal common differences. ठीक है. The first term of one of these is 3 and other one is 8. Then the difference between their 100th term. So for first series and for second series, T100 और यहाँ पे T100 will be a plus n minus 1 into d. So first series के लिए first term है 3, 100 minus 1 यानी कि 99, common difference is d. For second series, first term is 8 plus 100 minus 1 into d. Clearly difference between these numbers are 5. option D. Next question number 44. Find the 15th term of the series. This. तो clearly ये है which type of progression? Geometric progression. With common ratio. Common ratio is term upon previous term. Like 81 upon 243 will be 1 upon 3. हाँ, तो common ratio है 1 upon 3. Now for nth term of geometric progression, formula is Tn is equal to a into r to the power n minus 1. हाँ, so a यानी first term which is given as 243, r है common ratio 1 upon 3, n minus 1 यानी 15 minus 1 is 14. 243 is 3 to the power 4, 5 or 6? 5. So 3 to the power 5 upon 3 to the power 14. Final answer is 1 upon 3 to the power 9. Option C. Next question number 45 डिस्कस करते हैं. Who will explain question number 45? Question number 45 कौन explain करने वाला है? बोलो. पेपर देखो यार काफी इजी था. I have a doubt in this question. हाँ बोलो. Like I didn't understand the thing. I just tried to solve this question, but I didn't get the answer for this. अभी करने वाले डिस्कस. My question is who will explain this question? Anyone who can explain this question? Question number 45. Sir, shall I? हाँ संस्कार बोलो. Sir, first geometric progression T8 upon 3. We should do T8 upon T3. T8 will be a into r to the power 7. 8 minus 1 यानी 7 is equal to है 4 upon 9.
9. T3 is third term, a into r to the power कितना? Square. हाँ, 3 minus 1 into this is given as 27 upon 8, and then we have to find out t 12, t 4 term, 12 for 12th term, ऐसा. ठीक है संस्कार. So what should be the next step? T8 should be divided by T3. T8 should be divided by T3. This a will get cancelled. R to the power 7 upon r square will be r to the power 5. हाँ, और राइट हैंड साइड में है 4 upon 9 divided by 27 upon 8. Clearly this will get reciprocal, so 8 upon 27. 8 into 4 is 32, which is 2 to the power 5. 5. 9 into 27, 27 is 3 cube, 9 is 3 square, so total 3 to the power, 5. or this can be written as 2 upon 3 whole power 5. 5. This is r to the power 5. So clearly power same, number also same, यानी r is equal to 2 upon 3. हाँ, and then we have to find out T12. So T12 के लिए आपको पहले find करना पड़ेगा value of a. ठीक है, तो एक काम करते हैं, this value can be substitute in this expression. Yes or no? Yes, sir. A into r square, r है 2 upon 3, so r square will be 4 upon 9 is equal to 27 upon 8. using cross multiplication, a is equal to 27 into 9 upon 4 into 8. ठीक है, and then we have to find out T12. ठीक है, so T12 will be a into r to the power कितना? 11. 11. a है this 27 into 9. this is एक काम ये भी कर सकते हैं बेटा ना, जैसे a into r to the power 11, this can be written as a into r to the power 7 into r to the power 4. yes or no? Yes, sir. क्या है ना, आपको वैल्यू ऑफ a फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो into r to the power 7. a into r to the power 7 equals to 4 by 9. हाँ, तो ये वैल्यू है 4 upon 9, r is 2 upon 3, and 2 upon 3 power 4 is 16 upon 81. ये हो गया अभी 16 into 4 यानी 64, which is 2 to the power 6. 9 into 81, 9 is 3 square, 81 is 3 to the power 4. 4, तो ये है 3 to the power 6. 6. फाइनली कंसेप्ट इज जस्ट दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू ऑफ r फाइंड करो, इजीली इस क्वेश्चन का आंसर. सो फाइनल आंसर है दिस 64 upon 81 into 9, which is 729. ऑप्शन ए. ठीक है, कितने लोगों का करेक्ट था? ये काफी लोगों का करेक्ट है, बट कुछ रॉन्ग भी है. क्वेश्चन तो सिंपल ही था, देखो क्वेश्चन टफ नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करते हैं. हु विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 46? थर्ड टर्म गिवन है, सेवंथ टर्म गिवन है, 11th टर्म गिवन है ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर p q r. देन वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन अमंग p q and r. so t3 यानी थर्ड टर्म विल बी a into r to the power 2. ये गिवन है p. सेवंथ टर्म will be a into r to the power 6. बिल्कुल. ये गिवन है q and t11. 11th term a into r to the power 10. This value equals to नवीन ग्रुप क्रिएट r. ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ये r के प्लेस पे आप कुछ और यूज कर लो, क्योंकि स्मॉल r इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो एक काम करते हैं, कैपिटल R यूज कर लेते हैं. ठीक है, फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन p q and r. so we have to eliminate. We can also do that because the difference between that terms is 4 terms in between them. So प्रांजल क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो.
So there are three terms in geometric progression. So the square of middle term is equal to the multiplication of other terms. नहीं वो ठीक है, मतलब बट 3, 7 और 11 जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स का डिफरेंस है, ठीक है, डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है यार, है ना, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है ना, 3rd, 7th एंड 11th कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं होते हैं, तो ठीक है, मतलब आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो और कोइंसिडेंटली यहाँ पे आंसर आ रहा है, बट ऐसे ऑलवेज नहीं होगा। एक स्पेशलिटी ये भी है इस क्वेश्चन में कि 3rd, 7th और 11th अभी जो डिफरेंस है ना टर्म्स में वो फिक्स ही है, लाइक 4 टर्म्स डिफरेंस, 4 टर्म्स डिफरेंस। सो डायरेक्टली वी कैन यूज दिस कंसेप्ट कि स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। फिर भी थोड़ा बेटर रहता है कि आप एक बार ये कंसेप्ट यूज कर लो यहाँ पे, दिस कंसेप्ट, ठीक है। हियर वी हैव टू एलिमिनेट स्मॉल a एंड स्मॉल r। एक काम करते हैं, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म विल बी a स्क्वायर r टू द पावर 12 और राइट साइड में है q स्क्वायर, और फिर आप मल्टीप्लाई करो दिस एंड दिस, a into a square r to the power 10, r square will be r to the power 12, so clearly pr is equal to q square। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। who will explain question number 47? Who will explain question number 47? This and this are three positive consecutive terms of a geometric progression. Then find out the terms। ये कंसेप्ट आपको बताया था, if a b c are three consecutive terms of an arithmetic progression, then double of middle term is equal to, is equal to first term plus third term। a b c three consecutive terms for geometric progression, then square of middle term is equal to first term into थर्ड टर्म। अभी यहाँ पे 3 consecutive terms given है for geometric progression, so clearly square of middle term is equal to first term into थर्ड टर्म, 3x minus 4 into 5x plus 8। ये करो अभी आप मल्टीप्लाई और इसको करो सिंप्लीफाई, सो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 and right hand side expression should be just multiplication 3x into 5x, 15x square, this is minus 20x and this is 24x, 24x minus 20x will be 4x, minus 4 into plus 8 will be minus 32, using transposition take this on the right side, 15x square minus x square, 14x square, 4x minus 8x, minus 4x and 16, using transposition take on the right side, this will get minus 16, so minus 32 and minus 16 minus 48 is equal to 0। एक काम करते हैं, 14 minus 4 and minus 48, all three are even numbers, can be divided by 2, so this will be 7x square minus 2x minus 24 is equal to 0। अभी आप करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट और यूज कर, इधर यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला, 10 इजीली वैल्यू ऑफ x। ट्राई करना, नहीं होता है तो डिस्कस करेंगे, भाई क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 कौन एक्सप्लेन करने वाला है वो? फाइंड द समेशन, काफी लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, find the summation of all the multiples of 6 between 200 and 1100, so clearly multiple of 6 will be in form of 6k, 6 into something, so what will be the first number between 200 and 1100 which is divided by, which is divisible by 6?
204. 204 क्लियरली ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है. 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2 या फिर इवन नंबर. ठीक है. एंड हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3? समेशन ऑफ all numbers. digits, summation of digits. 2 plus 0 plus 4 is 6, clearly divisible by 3. और 6 से डिविजिबिलिटी का रूल भी यही होता है कि 2 और 3 दोनों से ही नंबर डिवाइड होना चाहिए. ठीक है. 204 देन 210 वो 6 के डिफरेंस में आएगा ना, 6 के डिफरेंस में ही आएगा. देन 216 clearly this is which type of progression? Arithmetic. With common difference 6. 6. And what should be the last number? 1098. 1099 तो पॉसिबल नहीं है. 1098 पॉसिबल है क्या? Yes, sir. 1098. 1098 डेफिनेटली पॉसिबल है. इवन नंबर है, समेशन ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे 1 + 0 + 9 + 8 यानी 18, क्लियरली डिविजिबल बाय 3 आल्सो. ठीक है. सो 1098. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट समेशन ऑफ दीस टर्म्स. समेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into first term plus लास्ट टर्म. ठीक है. फर्स्ट टर्म है यहाँ पे क्लियरली 204, लास्ट टर्म है 1098 अपॉन में है 2. नाउ हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ टर्म्स? ये बताओ. We can use the formula for nth term. 1098 is equal to a plus n minus 1 into. यहाँ से फाइंड करोगे आप वैल्यू ऑफ n, ये यहाँ पे करोगे सब्स्टिट्यूट. इजीली इस क्वेश्चन का आंसर है. अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है. प्रोग्रेशंस इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, प्रोग्रेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 49 इज इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ 6 टर्म्स. मतलब 6 टर्म्स है वहां पे. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली. फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म एंड द fourth term of that GP. So first term is given as x cube upon y square. Sixth term will be a into r to the power 5. This is given as y cube upon X square. we have to find out the ratio of third term and the fourth term. Third term will be a into r to the power 3 minus 1 यानी कितना 2. And fourth term will be a into r to the power. So we have to find out ratio. A and a cancel. R square upon r cube will be 1 upon. R. So basically आपको find करना है just value of r. ठीक है. So for value of r we have to eliminate a. एक काम करते हैं, एक ही वैल्यू यहाँ पे करो आप सब्स्टिट्यूट. तो ये हो गया अभी x क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर 5 इज इक्वल टू y क्यूब अपॉन x स्क्वायर. यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r टू द पावर 5 इज इक्वल टू y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5. r is equal to y upon. So 1 upon r will be x upon y. X upon y is available in the option D. क्वेश्चन नंबर 50 सिंपल ही है. क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. 2 लेक्चर्स हो गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. ओके, आज लास्ट लेक्चर है, फिनिश करते हैं चैप्टर को. पहले क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करते हैं. फाइंड द समेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस. ये आपको ऑलरेडी सिखाया है. ax² + bx + c = 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन if roots are alpha and beta, then summation of roots is equal to minus B upon A. and multiplication of roots is equal to B upon A. c upon a. Everything will be with the sign.
A is coefficient of x square, B is coefficient of x, and C is Constant. बिल्कुल B है coefficient of x which is 27, A है coefficient of x square, this is √3 और यहाँ पे है माइनस साइन. 27 is 9 into 3. this cancel √3 times, final answer is minus. 9. एक ही पॉसिबल ऑप्शन है ऑप्शन ए. If we want to check alpha into beta, this will be c by a, यानी 5√3 upon √3. √3 cancel, answer remaining है just 5, so a. Question number 52 डिस्कस करते हैं. Who will explain question number 52? Question is x square minus 12x plus 32 is equal to 0. This equation having roots alpha and beta. Then we have to find out alpha square plus beta square upon alpha plus beta. देखो वैसे तो इस इक्वेशन के रूट्स इजीली फाइंड कर सकते हो आप, है ना, यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, सो फैक्टर्स विल बी x minus 4 into x minus 8 is equal to 0, यानी फर्स्ट रूट इज 4 एंड अदर रूट इज 8. ये वैल्यू करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, इजीली इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करते हैं. अगेन इजी क्वेश्चन है. फाइंड द समेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी इज वैल्यू ऑफ बी इज minus 25 upon 25/3. with sign b is minus 25 upon 3 and a is minus 1. Everything should be with the sign. ठीक है, 3 नेगेटिव है, फाइनल आंसर शुड बी नेगेटिव minus 25 upon 3. Multiplication of roots will be c by a. C is constant term is 20. 5a is coefficient of x square which is minus 1. So this negative, this also negative, यानी ऑप्शन है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करते हैं. 54 काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है. For what value of k if one root of the quadratic equation is double of the other? Let's say first root है p, then other root will be 2p. Here we can use again summation and multiplication. Summation of roots कितना बोलो? 3. मतलब 3p होगा which is equals to minus b upon a. b is coefficient of x and a is coefficient of x square. कितना वैल्यू आ गया? 2. Now multiplication of roots p into 2p. p into 2p will be 2p square and which equals to c by a. c by a. 3p is equal to 2. p is equal to 2 upon. ये वैल्यू करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, इजीली वैल्यू ऑफ k. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस करते हैं. 55 भी इजी क्वेश्चन है. x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0. देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है ना, तो सबसे पहले वही करना चाहिए, उससे क्या रूट्स आ जाते हैं, बाकी फिर कुछ करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है. अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट इजीली हो जाएगा एंड फैक्टर्स विल बी x minus 3 into x minus 9. So finally roots are x is equal to 9 and x is equal to 3. ये वैल्यू करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट. 3 क्यूब प्लस 9 क्यूब. 3 क्यूब प्लस 9 क्यूब. 9 क्यूब इज 720. 9 and 3 क्यूब इज 20. दोनों का एडिशन विल बी 750. 6. नेक्स्ट क्वेश्चन. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है क्या बोलो? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि नहीं होगा इसलिए ना, तुम करके देखोगे तो नहीं होगा वो. ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा. अल्फा बीटा कॉमन, रिमेनिंग है अल्फा प्लस
बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. C is constant term, A is coefficient of x square यानी कि -2. Alpha plus beta is summation of roots which equals to minus b by a, minus a is coefficient of x square 1, b is coefficient of x यानी कि 3, तो ये हो गया -3. Multiplication will be 6. option C. Next question number 57. If one root of the equation is thrice the अदर, सेम अभी जो क्वेश्चन किया था वैसे ही है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0. फर्स्ट रूट इज लेट्स से p, देन अदर रूट विल बी 3p. समेशन ऑफ रूट्स p प्लस 3p यानी 4p इक्वल्स टू माइनस b by a is coefficient of x, b is coefficient of ये है -2, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2. 4p इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू 1 अपॉन. मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स विल बी p इंटू 3p यानी 3p स्क्वायर. दिस इक्वल्स टू c by a यानी c अपॉन 1. p की वैल्यू करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट. c इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन 4 यानी 3 अपॉन 4. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. Alpha and beta are the roots of the equation this, then find out alpha minus beta whole square. So alpha minus beta whole square will be alpha plus beta whole square minus 4ab या 4 alpha beta. Alpha plus beta again summation of roots minus b upon a यानी माइनस का p स्क्वायर करते हो तो p स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा c by a यानी कि q. सो p स्क्वायर माइनस 4q. ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैविंग रियल रूट्स. तो देखो इसमें आप रूट्स कैलकुलेट करना. ऑप्शन सी आप देखते हो ना, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जिससे ऑप्शन बी बताता है. एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा. ठीक है, फिर आप यूज करोगे फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 81 माइनस का 4ac यानी माइनस 64. दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव. हाँ, तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव आता है, प्रॉपरली डिफाइन होता है. ऑप्शन सी आप चेक करोगे तो स्क्वायर रूट में आएगा नेगेटिव नंबर विच इज नॉट डिफाइंड. बाकी कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं हम लोग फिर से. क्वेश्चन नंबर 6 0 करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स. मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, यूज करोगे फॉर्मूला. फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. a is coefficient of x square, ये है 1. b is coefficient of x which is 5. c is constant term यानी कि 1. माइनस b यानी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 25 माइनस का 4a और c यानी कि 4 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1. सो माइनस 5 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2. वन टाइम आप यूज करोगे प्लस साइन देन माइनस साइन. ऑप्शन -5 प्लस रूट 21 अपॉन 2 एंड -5 माइनस रूट 21 अपॉन 2. ऑप्शन सी. ठीक है, तो पेपर डिस्कशन तो हो गया है. कोई डाउट आप लोगों का पेंडिंग है तो बताओ, डिस्कस कर लेते हैं. पेपर सिंपल था लेकिन यार ना, पेपर काफी सिंपल ही था. टफ पेपर नहीं था और इम्पोर्टेंट पेपर था. मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. यार थोड़ा रिप्लाई वगैरह आना चाहिए आप लोगों की साइड से, है ना, वो ठीक रहता है. हाँ सर. तो लास्ट 2 लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता है तो फिर फॉर्मूला क्या यूज करना है, ये सारी चीजें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दिस विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन if a is not 0. a is नहीं, quadratic equation, for quadratic equation a should be 0 and b should not be equal to 0. not equal to 0। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे और फिर हम लोग आ गए थे दिस कंसेप्ट पे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इक्वेशन है दिस, रूट्स है अल्फा एंड बीटा, समेशन ऑफ रूट्स माइनस b by a, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स c by a। टेस्ट के ऑलमोस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ओके, एडिशन ऑफ रूट्स, ठीक है, ये हो गया सब इजीली। अच्छा, एक डाउट ये था कि अल्फा और बीटा किसे कंसीडर करना चाहिए, ऐसा देखो कुछ फिक्स नहीं होता है, एनी वन ऑफ द रूट्स कैन बी अल्फा एंड अदर विल बी बीटा। हाँ, बट सपोज करो आपको इस तरीके से गिवन है कि अल्फा लेस देन बीटा या अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो फिर आपको वो देखना पड़ता है। ओके, एक दो क्वेश्चंस और सर करते हैं। फिर अगर हमने कुछ गलत ले लिया, मतलब अगर एक रूट 4 हुआ और एक रूट 8 हुआ, तो उसको हमने अल्फा को 8 कंसीडर किया और बीटा को 4 कंसीडर किया, और लेकिन हमारा आंसर अलग आ गया और जो आंसर था वो अलग था, तो कैसे होगा फिर? ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे नहीं होगा कभी, तो टेंशन मतलब उसका वो गिवन होता है। सपोज करो आपकी वैल्यूज आ गए हैं, क्या बता रहे तुम, 4 और 8, यस सर। 4 और 8 वैल्यूज आ गए, ठीक है। इफ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, देन अल्फा विल बी एंड बीटा विल बी। और हाँ, अब क्वेश्चन में क्लियरली देने के बाद भी आप ऐसा सिली मिस्टेक करके अल्फा को 4 कंसीडर कर लेते हो और बीटा को 8 कंसीडर कर लेते हो, तब तो डेफिनेटली क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। समझ गए? सर लेकिन अगर दिया नहीं और हमने दिया नहीं है तो इसका- कभी प्रॉब्लम, दिया नहीं है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आता है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब दोनों किया तो सेम ही आंसर आएगा। दोनों किया तो सेम ही आंसर आता है। तुम खुद बताओ कि देखो क्या होता है ना, समझने का ट्राई करना। लेट्स से रूट्स आर 4 and 8, क्वेश्चन इज फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 4 plus 8 या 8 plus 4, आंसर सेम ही है ना। यस सर। हाँ, डिफरेंस विल बी इफ क्वेश्चन इज अल्फा माइनस बीटा, अकॉर्डिंग टू 4 minus 8 आंसर शुड बी -4 -4. 8 minus 4 करते हो देन आंसर। 4। बट इसके प्रॉब्लम के लिए भी क्वेश्चन में क्या होता है ना, ऐसे मॉडुलस साइन गिवन होता है, आइदर देयर विल बी स्क्वायर, बिकॉज -4 स्क्वायर और +4 स्क्वायर बोथ विल बी Plus 16. 16। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, या तो स्क्वायर मिलेगा आपको या फिर ऐसे कुछ मिलेगा, ये होता है मॉडुलस। मॉडुलस का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड, लाइक -4 और +4 बोथ हैविंग मैग्नीट्यूड कितना, 4, मतलब मैग्नीट्यूड में साइन नहीं देखते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड ही बता देते हैं उसका। जैसे 16 का मैग्नीट्यूड 16, -16 का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 16। 16. हाँ, तो ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा कि कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं था और फिर कुछ और ही आंसर आ गया ना, ऐसे नहीं होता है। ओके, ठीक है, एक कंसेप्ट लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये कंसेप्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in terms of its roots। देखो क्या होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन सेम और डिफरेंट? like 2x square minus 6x plus 8 is equal to 0 or x square minus 3x plus 4 is equal to 0. These two equations same or different?
सेम सेम ही है, जस्ट बोथ साइड डिवाइड किया है 2। ओके, तो बोथ साइड ऐसे सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो उससे इक्वेशन चेंज नहीं होता है ना। तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर एग्जैक्टली सेम, रूट्स आल्सो सेम, अल्फा एंड beta, and we know alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha beta is equal to b by a. p by a. So b upon a can be written as minus of alpha plus Beta. by a is equal to minus p, तो p is equal to minus A. हाँ सेम वही है, ठीक है। here is c by a and c by a equals to alpha beta is equal to 0. 0, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज अ समेशन ऑफ रूट्स एंड अल्फा इंटू बीटा इज multiplication प्रोडक्ट, of roots. हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। अब ये स्ट्रक्चर आपको एज सच वर्ड्स में लर्न होना चाहिए फुल। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स, कई बार क्या होता है रूट्स गिवन होते हैं और आपको इक्वेशन डिटरमाइन करना होता है। जैसे इक्वेशन गिवन है रूट्स डिटरमाइन करो, यहाँ पे कंसेप्ट है कि रूट गिवन है देन इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो इक्वेशन का स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ये रखना है आपको माइंड में। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, इन दिस ब्रैकेट अल्फा प्लस Alpha plus beta. और वी कैन से समेशन ऑफ Roots. हाँ इन दिस ब्रैकेट Product of roots. एग्जैक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आप नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। सर मतलब हर बार ऐसा ही होगा ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कभी वाइस वर्सा नहीं हो सकता। वाइस वर्सा यानी मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ नहीं नहीं जाएगा नहीं और नहीं 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 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ही सिचुएशन में आ सकता है इफ नंबर्स आर सच दैट कि उनका प्रोडक्ट और उनका समेशन सेम आता हो। तो ऐसे नंबर्स हैं क्या बताओ, वेयर प्रोडक्ट एंड समेशन आर Just 2 and 2. जस्ट 2 and 2. 2 and 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये है स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना ही चाहिए। और बहुत सिंपल सा पैटर्न है, ऐसा बहुत टफ पैटर्न नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट समेशन ऑफ रूट्स, सेकंड ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, find out the equation, find out the quadratic equation of which roots are 4 and minus 6। ये क्वेश्चन Then x square plus 10x minus 24. एक्स स्क्वायर माइनस Sorry, plus 10x 10 तो minus बेटा 24. 10 तो रॉन्ग है, 10 तो रॉन्ग ही है। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इन दिस ब्रैकेट multiplication of roots which is minus 24, in this bracket summation of roots 4 और minus 6 का summation या addition 10 होता है क्या? सर 2 आएगा।
-2 होता है ना 4 यार, अब ये सिखाना पड़ेगा हाँ। क्या आपको? Yes, yes, -2. So final answer will be x square plus 2x minus 24 is equal to 0. Correct? Yes, sir. Next question, this one. If p and q are two numbers such that p square minus 8p plus 4 is equal to 0 and q square is equal to 4q minus 4, sorry, 8q minus 4, then determine the quadratic equation having roots p plus q and p into q. ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं. If p and q are two numbers such that this is equal to 0 and this is equal to this, then determine the quadratic equation having roots. First root है p plus q and other root is P into Q. p into q. करो try. सर मतलब हमें P और Q को क्वाड्रेटिक सॉरी रूट्स कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ उनका एडिशन रूट्स होंगे. p और q roots नहीं है, p और q roots नहीं है. First root is p plus q and other root is, P into Q. let's say p है 2, q है let's say 5. तो अभी न्यू इक्वेशन के 2 और 5 रूट्स नहीं है, रूट्स आर 7 एंड 7 and 10. हाँ बिल्कुल. p plus q is one number, p into q is other number. ये क्वेश्चन है. Yes, sir. देखो आप एक काम करो, यहाँ पे आप फर्स्ट तो दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन और वी कैन से इक्वेशन, इनको ऑब्जर्व करो. बोथ आर सेम और डिफरेंट? Same. बोथ आर एग्जैक्टली सेम. बस p के प्लेस पे क्या यूज किया है उन्होंने? Q. q. Using transposition, take this on the left side. So q square minus 8q plus 4 is equal to 0. ठीक है, एग्जैक्टली सेम. ओनली p के प्लेस पे है q. ठीक है, तो अभी इन दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए बोलो? देखो इसको इस तरीके से समझने का ट्राई करो. लेट से एक स्टूडेंट है, इसका नाम है अविनाश शर्मा ले लेते हैं. सेकंड है, इसका नाम है विशाल शर्मा. ये दोनों एग्जैक्टली सेम ही दिखते हैं और सरनेम भी सेम ही है. तो क्या मीनिंग हो सकता है इसका? यही हो सकता है ना कि दोनों ब्रदर्स होंगे. नहीं, सेम यहाँ पे भी
P और Q के जस्ट इंटरचेंज ही हो रहा है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है, P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 8P माइनस 8Q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका इंटरप्रिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी सा इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करना। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। रूट्स का स्पेशलिटी क्या होता है? रूट्स विल सेटिस्फाई द गिवन। इक्वेशन। equation. हाँ, रूट्स का स्पेशलिटी ये होता है, या रूट्स का आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं हम लोग कि रूट्स सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। रूट्स विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यानी x के प्लेस पे आप अल्फा यूज करते हो या फिर बीटा यूज करते हो, देन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी equal a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0 in the same way a beta square plus b beta plus c will also be 0। ठीक है, अभी एक तो हो गया दिस स्टेटमेंट, और सपोज करो स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होता है कि a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0 and a beta square plus b beta plus c is equal to 0, then clearly क्या बोलो? Alpha and beta should be the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0। कंप्लीटली इसका रिवर्स स्टेटमेंट ही हो गया, वाइस वर्सा हो गया ये। ax square plus bx plus c is equal to 0 के रूट्स से अल्फा बीटा, रूट्स नहीं किया सेटिस्फाई, ये दोनों इक्वेशंस बन गए। अब ये गिवन है तो इससे वी कैन इंटरप्रेट किया स्टार्टिंग में ऐसा रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स रहे होंगे कौन? अल्फा एंड बीटा। इन द सेम वे यहाँ पर P और Q जस्ट इंटरचेंज हो रहा है, बाकी एक्जैक्टली सेम है कंप्लीट एक्सप्रेशन। सो क्लियरली P एंड Q, क्लियरली P and Q will be the roots of the equation. Which equation? x square minus 8x plus 4 is equal to 0। P और Q के प्लेस पे आपको जस्ट x लिखना होता है, तो x square minus 8x plus 4 is equal to 0। This equation will be having roots P and Q। So इस equation का one root है P, other root है Q। What will be the value of P plus Q? 2p or 2q. माइनस b बाई ए, यानी प्लस 8 एंड व्हाट विल बी p इंटू क्यू? c बाई ए, कितना बोलो? 4। नाउ वी हैव टू determine a equation of which roots are p plus q and P into Q. यानी वन रूट है 8 एंड अदर रूट है कितना? 4। One root is p plus q which is 8, other root is p into q which is 4। ठीक है, so answer will be x square minus bracket x plus bracket is equal to 0। In this bracket Minus 12. summation of roots, and in this bracket Multiplication. multiplication of roots। तो final answer is x square minus 12x plus 32 is equal to 0। Clear? सर हाँ बोलो। सर अभी हमें पता चला कि 8 और 4 रूट्स है, मतलब अगर हम उसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें तो वहां पर हमें -8 या फिर -4 डालना पड़ेगा, मतलब -8 एंड -4 ऐसा डालना पड़ेगा, लेकिन हमें रूट्स जो मिले वो 8 एंड 4 है। बेटा -8 और -4 ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हम लोग, ये फाइनल आंसर थोड़ी होता है, ये तो मिडिल टर्म, ये तो स्टेप होता है। तुम यही तो बोल रहे हो कि -8 और -4 करना पड़ेगा, यही बोल रहे हो ना?
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके रूट -8 हो गए, इसके फैक्टर्स में x-8 आएगा। नहीं समझे? Yes. हाँ, तो रूट्स -8 और -4 नहीं है, वो फैक्टर्स है। रूट्स के लिए तो इसको पहले 0 करोगे, x-8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 8. हाँ, तो वो फैक्टर्स है, वो स्टेप है, वो फाइनल आंसर थोड़ी है। समझ गए? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस टाइप। ax square plus bx plus c is equal to 0 having roots in the ratio 2:3, then determine the relation between a, b and c। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ, काफी अप्रिशिएट करने वाला हूं। और ये क्वेश्चन सिंपल ही है, 2:3 में रूट्स है, रूट्स कैन बी कंसीडर्ड एज 2 अल्फा और 3 अल्फा। फिर यूज करो समेशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, और अल्फा को एलिमिनेट कर दो। करो ट्राई। Sir, determine the relation between मतलब हमें क्या ढूंढना है? डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन ए बी सी, मतलब एक रिलेशन फाइंड करना है आपको यार। एक रिलेशन तो रिलेशन ही होता है ना। जैसे आपको मतलब कुछ तो एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ऐसा कुछ आना चाहिए, लाइक ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये रिलेशन हो गया एक बिटवीन ए बी एंड सी। ऐसे कुछ आ yes, सकता है 2a + 3b इज इक्वल टू 4c, तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन ए बी सी। ऐसे yes, भी कुछ आ सकता है 8ab स्क्वायर इज इक्वल टू c या 5c, तो ये भी एक रिलेशन हो गया बिटवीन ए बी सी। मतलब ए बी सी को रिलेट करना है आपको, समझ गए? sir तो आंसर ऐसा आएगा क्या, चेक करो। फाइनल A आंसर विल square. बी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी एंड सम कांस्टेंट। आप क्या Yes, बोल sir. रहे हो बताओ? सर मतलब हमें ये अभी उनके एबीसी की वैल्यू नहीं पता है, तो आंसर में एबीसी ही आएगा ना, वैल्यू बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ए बी सी ही आएगा, बिल्कुल आएगा। सर तो आंसर ये हो सकता है क्या, चेक करो ना। ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। ये कैसा रिलेशन? अल्फा भी हो सकते हैं फिर बीटा। ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये तुमने मतलब क्या है यार, ये ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, ये रिलेशन हो गया। अल्फा बीटा कैसे आ जाएगा? जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ना, उसी फॉर्म में आंसर आता है। क्वेश्चन में अल्फा गिवन है क्या? नहीं क्वेश्चन में तो मैं कहीं भी अल्फा दिख रहा है क्या बताओ? नहीं हाँ, तो नहीं आएगा अल्फा के टर्म्स में आंसर। आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, या फिर सम कांस्टेंट 2 3 4 5 6 ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं। ax square plus bx plus c is equal to 0. Roots are given in the ratio 2:3, so we can consider the roots 2 alpha and। बीटा। ये समझ में आता है? ये समझ में आता है? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। 2:3 है, then values will be 2x 3x 2p 3p 2 alpha 3 alpha। Okay, we can use summation of roots। Summation of roots will be 5 अल्फा
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बोलो? 6 अल्फा टू अल्फा इंटू 3 अल्फा मल्टीप्लीकेशन 6 अल्फा स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यानी सी बाई ए। ये क्लियर? यस सर एलिमिनेट अल्फा। एनी हाउ एलिमिनेट अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बस क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सो अल्फा इज यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस का बी अपॉन 5a और ये वैल्यू आप कर दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो ये हो गया अभी 6 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इज बी स्क्वायर अपॉन 5a बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, हाँ 25 ए 25 स्क्वायर। ठीक है, Yes. और इक्वल टू में है क्या? सी बाई ए हाँ 1 ए कैंसिल। एक सेकेंड, remaining 6b square using cross multiplication 25 into a into। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। 6b square is equal to 25ac। प्रांजल थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा आपका। ठीक है, आंसर शुड बी 6b square is equal to 25 ए सी ac। इसको बोलते हैं रिलेशन। मतलब समझ गए ना, रिलेट हो जाते हैं ये। ऐसे अंकल आंट ऐसे रिलेशन नहीं होते ना नंबर्स में, इस तरीके से होते हैं रिलेशन। ए बी सी रिलेट हो गया। कैसे रिलेट हो गया? 6 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ ए एंड सी। सर डन? हाँ बोलो। फिर रिलेशन इक्वेशंस में ही आना चाहिए ना, एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? मतलब जो रिलेशन है उन तीन Numbers में? हाँ नंबर्स का वो इक्वेशन में आना चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं चलेगा फिर। नहीं ऐसा क्यों? इक्वेशन देखो, एक्सप्रेशन और इक्वेशन तुम समझ नहीं रहे हो। अब जैसे ये जो 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ac है ना, हाँ इसको तुम इक्वेशन बोल दो इन टर्म्स ऑफ एबीसी। दिस इक्वेशन सुनो सुनो, दिस इक्वेशन कंसिस्टिंग 3 वेरिएबल्स ए बी और एक्सप्रेशन बोल दो, वो भी चलता है। देखना पड़ता है, मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है क्वेश्चन का, वो देखना पड़ता है। ठीक है, सर लेकिन एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें मतलब इक्वल टू साइन नहीं होता है। अच्छा जैसे ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? इक्वेशन ऐसा नहीं है यार, तो मैं वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को। इसको तुम इक्वेशन बोलते हो ना तो भी ओके है, इसको आप एक्सप्रेशन बोलते हो तो भी ओके है। हाँ बट ये होता एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये 100% इक्वेशन ही है, ये एक्सप्रेशन नहीं है। इज इक्वल टू में कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। यहाँ पर आप वैल्यूज ऑफ x पुट करो, कंटिन्यूअसली वैल्यूज ऑफ y भी आएगा आपको। ये बेसिकली इनपुट हो गया। अब ये क्या हो गया? ये सॉल्व हो गया, मतलब मिल गया हमको। आउटपुट हो गया ये। जैसे x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो देन y विल हैपन, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो देन आल्सो y विल कम, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हो देन आल्सो y विल कम, x इज इक्वल टू 4 पुट करते हो देन आल्सो y विल कम। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आप रैंडम कोई भी नंबर पुट कर सकते हो क्या? नहीं, इसमें तो वही नंबर्स पुट कर सकते हो आप जो उसका which will solution है। satisfy the given equation। Equation। हाँ, इसमें केवल वही नंबर्स पुट कर सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब उनको पुट करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड शुड बी
सेम। सेम, जैसे कोई बोलता है कि x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, नहीं कर सकते। 1 + 4 + 3 0 होता है क्या? नहीं, बट इसमें तुम x इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो। 1 + 4 + 3 यानी 8। एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, 8। एक्सप्रेशंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, कुछ भी पुट करते जाओ आपको आउटपुट मिलते जाएंगे। इक्वेशन के अंदर फिक्स नंबर्स होते हैं जो वहां पे पुट कर सकते हो, जैसे क्वाड्रेटिक में 2 नंबर्स, क्यूबिक में 3 नंबर्स, लीनियर में जस्ट 1 नंबर। समझ गए? यस सर। वो हाँ हमें ऐसा ही सिखाया था कि मतलब अगर इक्वल टू साइन हुआ तो ही इक्वेशन। देखो, तुम समझने का ट्राई करो जय, ऐसे स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने सिखाया था उन्होंने गलत सिखाया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंकिंग का थोड़ा सा फर्क हो जाता है, समझ गए? यस। कि क्वेश्चन को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर इसमें तो ए बी है, बी बी है, सी बी है। तुम ए और सी की वैल्यूज रखो, अकॉर्डिंगली वाई बी स्क्वायर के वैल्यूज आते जाएंगे और बहुत सारे वैल्यूज आते जाएंगे। समझ गए? यस। हाँ, बट इस क्वेश्चन को मैं कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई करता हूँ तो फिर ये इक्वेशन भी बन जाएगा। तो अभी इतना मत सोचो, ठीक है? यस सर। हाँ, वो सब समझ में आएगा आपको धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो उसका। तो ऐसा नहीं है कि इक्वल साइन होने से इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इक्वेशन का मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये होना चाहिए कि एन एक्सप्रेशन विच इज सेटिस्फाइड बाई ओनली फिक्स नंबर्स या स्पेसिफिक नंबर्स या बाई सम नंबर्स। समझ गए? यस सर। तो उसी को फिर इक्वेशन बोलते हैं। अब वहां पे इक्वल साइन हो जाता है तो अच्छी बात है। ऐसा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट समझने का ट्राई करो यार, है ना? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी जैसा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ देखो, ये समझने का ट्राई करो। जैसे x² - 4x + 3 = 0। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, फिर फैक्टर्स करोगे, यू विल गेट रूट्स x = 1 एंड x = 3। ठीक है, 1 इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट। लेट्स से इक्वेशन है दिस, x² - 4x + 4 = 0। हियर फाइंड आउट द रूट्स। रूट्स फाइंड कर दो, क्या आता है? अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स। So x² - 2x - 2x + 4, x कॉमन, रिमेनिंग है x - 2, -2 कॉमन, रिमेनिंग है x - 2। सो एक्चुअल में आप फाइंड करोगे तो बोथ रूट्स विल बी इक्वल। इसको बोलते हैं रियल एंड सेम रूट्स। और अभी आप ये फाइंड करो, x² + 2x + 4 = 0। फाइंड आउट द रूट्स। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। a is coefficient of x², b is coefficient of x and c is 4 x is equal to -b plus minus under root of 4 into 4
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4a और c यानी कि 16 यानी -12। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म will not be डिफाइन। स्क्वायर रूट में नेगेटिव डिफाइन ही होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2 विल नॉट बी डिफाइन। रीजन क्या है? सपोज करो ये डिफाइन है तो दिस इक्वल्स टू x यानी -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, बट स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन, और वी कैन से इमेजिनरी रूट्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो बेसिकली रूट्स में 3 टाइप के सिचुएशन पॉसिबल है। फर्स्ट सिचुएशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, सेकंड पॉसिबिलिटी रियल एंड सेम रूट, एंड थर्ड इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी का मतलब नॉट रियल, जहां पे स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है, मतलब आपको रियल में नंबर्स नहीं मिलते वहां पे बेसिकली। ठीक है, इसको हम लोग डिसाइड करते हैं यूजिंग कैपिटल डी। नाउ व्हाट इज कैपिटल डी? काफी इजी सा कंसेप्ट है, स्टार्ट करते हैं। ax square plus bx plus c is equal to 0, a comma b comma c belongs to, this is sign of belongs to। ठीक है, जैसे v belongs to कोल्हापुर, ऐसे मतलब समझ गए ना, b belongs to कोल्हापुर का क्या मीनिंग है, यानी इससे बिलोंग Yes. करते हैं। हाँ, ऐसे ही a b c दिस इज साइन ऑफ बिलोंग्स टू, आर फॉर रियल नंबर्स। ओके, रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी देखो क्या होता है ना, लेट्स से b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस नंबर है पॉजिटिव, देन स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर आता है, रूट्स विल बी डिफाइंड। वन टाइम आप यूज करोगे प्लस साइन, अदर टाइम आप यूज करोगे माइनस साइन, रूट्स विल बी डिफरेंट। लेट्स से b स्क्वायर माइनस 4ac है 0, अंडर रूट ऑफ 0 कितना होता है बोलो? 0, माइनस b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, यूजिंग प्लस साइन एंड माइनस साइन, आउटपुट्स विल बी सेम और डिफरेंट? Same. 5 प्लस 0 और 5 माइनस 0 और सेम। और लेट से b स्क्वायर माइनस 4ac है नेगेटिव, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर, यानी रूट्स विल नॉट बी डिफाइंड। सो बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीटली डिपेंड करता है इस नंबर पे, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, कैपिटल डी, और वी कैन यूज दिस सिंबल, ट्रायंगल का सिंबल है, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। और ये होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस, 4ac, हाँ, फर्स्ट पॉइंट काफी ज्यादा सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव, सेकेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, थर्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव। नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अभी समझ लो अच्छे से। बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे 2 रियल एंड, distinct, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल and and same या equal, and if b square minus 4ac negative, then roots are not real, roots are actually, imaginary. just इतना सा कंसेप्ट है बस। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो और भी कई सारे कंसेप्ट होते हैं, वो नेक्स्ट ईयर करेंगे हम लोग 10th में, अभी के लिए इतना है। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्लियर ये कंसेप्ट? Yes, sir. b is coefficient of x, a is coefficient of x square, and c is, Constant term. if b square minus 4ac है positive, two real and distinct roots, b square minus 4ac है 0, roots are real and same, and if b square minus 4ac negative, roots will be not real या फिर imaginary। फर्स्ट क्वेश्चन है ये ट्राई करो।
If roots are same, find the value of p. करो. 3x square plus px plus 12 is equal to 0. If roots are identical, then find out the value of p. प्रांजल 144 आंसर कैसे आ जाएगा? For real roots, d is equal to 0. d is b square minus 4ac is equal to 0. हाँ, correct है. b is coefficient of x, which is p, यानी p square minus का 4a और c. This should be आंसर correct है. p square is equal to 4 into 3, 12 into 12, यानी 144, and 144 is square of either 12 or -12. हाँ. So answer will be 12 or -12. Clear? Next question ये solve करते हैं. 2x square plus 3x plus p is equal to 0, having real roots. Then find p. ये ट्राई करो. सर लेकिन इसमें मेंशन किया नहीं है कि डिस्टिंक्ट है या सेम. ये अच्छा डाउट है आपका. Real roots. Either d is equal to 0 या फिर d greater than 0. So d greater than or equal to 0. Just इतना स्टेटमेंट है real roots. ये मेंशन नहीं है कि रूट्स आर डिफरेंट और रूट्स आर सेम. देन d greater than or equal to 0. 0 और imaginary roots, then clearly d less than 0. हाँ. अभी सॉल्व. सर p is equal to 3. एक से d greater than or equal to 0. d is b square minus 4ac. a is 2, b is 3, and c is p. b square यानी कि 9 minus 4a और c. This should be greater than or equal to 0. यानी 9 greater than or equal to 8p. ये समझे? 8p ट्रांसपोजिशन राइट साइड. Yes. Or we can write 8p less than equal to 3 greater than 2 or 2 less than 3. These two statements same or different? Different. Sorry, same. Same. Same.
8p लेस देन इक्वल टू 9 यानी p लेस देन और इक्वल टू 9 अपॉन ये आंसर आएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इज 9 अपॉन 8 ऐसा, ठीक है। तो ये एक इंटरवल आ गया, फुल रेंज आ गया, 9 अपॉन 8 या फिर 9 अपॉन 8 से कम कोई भी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, a टाइम्स b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस ए एक्स प्लस c टाइम्स a माइनस b इज इक्वल टू 0 हैविंग बोथ रूट्स सेम। ट्राई करो। Both roots are same, so D should be इक्वल D is equal to 0। देखो क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि एक कंसेप्ट था और वो हम लोगों ने लर्न कर लिया और बस उसी को अप्लाई करना है, ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कभी भी तो क्वेश्चन में ऐसे मिलता है ना a b माइनस सी सी माइनस a माइनस b, तो आपको x इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करना चाहिए कि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या। चेक करते हैं, 1 स्क्वायर 1 1 तो 1, तो ये आ गया अभी ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ए बी कैंसिल, बी सी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी बी कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, यानी डेफिनेटली वन रूट इज x इज इक्वल टू 1 सो अब क्वेश्चन में गिवन है बोथ रूट्स आर सेम, यानी बोथ रूट्स आर 1 हाँ। Now we have to find out the relation between A, B, C. You can use summation of the roots or multiplication of the roots. Multiplication use कर लेते इजी रहेगा, बाकी समेशन यूज करते तो भी कोई इशू नहीं है। 1 into 1 कितना होता है 1 इज इक्वल टू c by a, यानी this upon this है c टाइम्स a माइनस b और this है a टाइम्स b माइनस फाइनल आंसर है ए बी माइनस ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए सी माइनस bc बी सी। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो सब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है के अकॉर्डिंग। देखो इसको ये भी लिख सकते हो बेटा यहाँ पे ना, इसको लेके आ जाओ यहाँ पे इधर, तो दिस यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड ए बी प्लस बी सी, दिस यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड माइनस ए सी विल बिकम प्लस ए सी प्लस ए सी, 2ac और यहाँ पर b कॉमन, रिमेनिंग है कितना a plus c, so finally b is equal to 2ac upon, a plus correct। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन a b एंड c। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे होता है कंप्लीट। नोट्स शेयर करता हूँ, साथ में प्रैक्टिस शीट भी शेयर करता हूँ, सॉल्व करना, और वो हम लोग इधर नेक्स्ट टर्म पे और उसके पहले आप लोग अलग से डाउट पूछते हो तो डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। डन, yes ओके। लेक्चर के बाद में नोट्स रिवाइज जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट्स रिवीजन करना मस्ट है। हाँ बोलो सर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और लीनियर इक्वेशन वो अलग कंसेप्ट होता है क्या, सेम होता है? बेटा अलग होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अलग होते हैं, वहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब वो सब आता है। और सेकंड क्या बोल रहे थे तुम, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस अलग होते हैं, वहां पे x मतलब वो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जैसे 2x + 3 = 4, 2x + 3y = 7, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्म में, ठीक है।
Yes. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो हो गया है आपका, लीनियर इक्वेशंस 8th में पढ़ाया था वैसे, लेकिन इस बार रिवाइज करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है? Yes. हाँ, चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है? Bye sir. अब थोड़ा सा एक्टिव रहा करो ना, एक्टिव रहा करो, प्रॉपर टाइम पे उठ के क्लास अटेंड करना, ये तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे क्लास में बार बार अच्छा नहीं लगता है बोलना कि उठ जाओ सब लोग, उठ जाओ, ठीक है? चलो बाय। Yes. Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir.